Hello everyone, welcome to my YouTube channel Enhance Education. Now in front of you is the chapter 1 electric charges and fields and example 1.7. In this example, the question is consider three charges Q, Q and minus Q placed at the vertices of an equilateral triangle as shown in the figure. Okay, I will show you this figure. Now just we have to calculate the force. What is the force on each charges? Okay, so now see what in this question is given. There is a equilateral triangle, okay, of each of side L. Suppose this side L is given. Now let me take yes, this is the L is the side of this equilateral triangle, and there we have three charges placed on these vertices, that is A, B, C is the vertices, and the charges are Q1 is Q, Q2 is Q, and Q3 is minus Q. Okay, they are placed at the vertices. Now we have to calculate the forces on each other, force on each charge, that is at A, at B and C. यानी Q1 पर कितना फोर्स होगा, Q2 पर कितना फोर्स होगा एंड Q3 पर कितना फोर्स होगा. यानी जैसे हम बात करें पहले फर्स्ट चार्ज A की, यानी चार्ज Q1 की विच इज एट पॉइंट A. तो हम क्या करेंगे कि हम बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वी कैलकुलेट द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस, है ना, बाय Q2 एंड Q3. तो हम एक एक करके बाकी जो दो हैं चार्जेस उससे हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे. तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स ऑन Q1, ओके, ड्यू टू Q2. तो दैट फोर्स वुड बी रिपल्सिव बिकॉज बोथ आर द पॉजिटिव चार्जेस. तो इससे क्या होगा कि जो Q2 जब उस पर फोर्स लगाएगा तो इट विल रिपेल and the direction of that force would be, you can see at this point A is this direction. Okay, so the point at A we call it, suppose, the first point. Okay, at B we say that this is the second point. So we talk about in the 1, 2 and 3 टर्म्स में बात करेंगे ताकि इजी हो जाए क्वेश्चन. ठीक है, तो ऑन चार्ज 1 by 2, तो this is the direction of this force, and this force is F12. We can call it as force on F1 due to F2. Okay, and the direction is this. And by third charge, the force on first charge, and it is directed towards the Q3 charge because they both are negative charges, and unlike charges attract each other, so that Q3 attract the Q1, okay, towards itself. So its direction is this, and this is called F13. Okay, so there are two charges, there are two forces on the same single charge. So we have to calculate its resultant force, and that we can calculate by वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. यानी हम उसको वेक्टर की तरह ऐड करेंगे और उसका एडिशन जो निकलेगा वो हमारा होगा F12 और F13 का रिजल्टेंट. ओके, एंड बाय पैरेललोग्राम लॉ हम क्या करेंगे, पिक्चर में अगर देखें तो वी ड्रॉ पैरेललोग्राम. ओके, एंड देन द डायगोनल बाय अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, द डायगोनल रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड F1. तो इस तरह से हमारी जो F1 आएगी, आपने देखा इसके अंदर वेक्टर डायग्राम से कि हम F1 की डायरेक्शन भी इस तरह से निकाल सकते हैं. ओके, एंड दैट डायरेक्शन इज अलोंग BC. आप देखेंगे BC जो साइड है उसकी जो डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन होगी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा. ओके, सो फोर्स ऑन चार्ज Q1, ओके, ड्यू टू Q2. अगर हम Q1 पर निकालें Q2 से, तो जैसे हमने निकाला वो वैल्यू क्या आई, F12. सिंपल यहाँ कूलम्स लॉ लगेगा, दैट इज K, एंड द चार्जेस इज Q1 दैट इज Q स्क्वायर, एंड द डिस्टेंस कितनी है इसके बीच में, दिस इज L स्क्वायर. तो ये आपका F12 आ गया, जिसकी डायरेक्शन हम यहाँ शो कर सकते हैं इस तरह से. ओके, इसी तरीके से हम फोर्स दूसरी निकाल सकते हैं. फोर्स we can calculate this force by on the same charge, that is Q1. Now this time we take the third charge. Okay, so यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम निकालेंगे यहाँ पर F13, now there is a very important point,
because one charge is negative and one charge is positive. But when we are calculating the magnitude, then we don't take sign positive या negative. हम negative नहीं लेंगे उसमें. Negative actually in vector quantity, negative shows the direction. Okay, so we don't take the negative. हम vector form में लिखेंगे only then we consider the plus or the minus, sorry, on the only the minus sign. So f13 will be the k, again it is q square upon L square. Okay, we are not taking minus sign. Okay, so here you can see that from these two you can see that f12 and f13 दोनों ही ये इक्वल है, that is equal to k q square upon L square. तो क्यों ना हम इसको सिंप्लिसिटी के लिए इतना बड़ा ना लिखकर हम इसको सिंपल f से डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा ये जो वैल्यू है दिस इज योर f. ओके, एंड दिस इज अगेन f. लेकिन हमें निकालना है इसका रिजल्टेंट. अब यहाँ रिजल्टेंट निकालने के लिए इन दोनों में एंगल मालूम होना चाहिए. Because this is your equilateral triangle, so this is 60 degree. So by linear pair this become 180, sorry, this become 120 degree. This is become 120 degree. This is 120 degree. Okay, so resultant निकालेंगे तो force, resultant force हम लिख सकते हैं इसको. तो एक अगर हम निकाल लेते हैं बाकी फिर सिमिलर हो जाएगा कंडीशन. तो resultant force ऑन Q1, तो उसको हम लिख सकते हैं सिंपली F1. ओके, सो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से, वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल से या पैरेललोग्राम लॉ से हम निकलते हैं. तो रिजल्टेंट क्या होगा, दैट वुड बी F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2 F13 and the angle between this and that is 120 degree and then square root of this. Okay, so बस क्या करेंगे अब हम यहाँ f12 f13 की जगह f रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा f स्क्वायर. ओके, this become again f square, this become 2 f square cos 180 degree 120 degree is equal to 1 by 2 minus 1 by 2. ठीक है, तो ये इस तरह से वैल्यू आ जाएगी. ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस एफ स्क्वायर आ जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और एफ स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो सिंपली क्या आएगा, एफ आएगा. यानी जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है किस पर, फर्स्ट चार्ज पर, वो कितना है, एफ ही है. एफ जानते हैं हम कितना, एफ हमने यहाँ लिया हुआ, तो सिर्फ यही वैल्यू है वो आपकी F1 पर आ रही है. तो हमने इस तरह से आंसर निकाल लिया. हमें क्योंकि हर चार्ज पर निकालना था कितना फोर्स होगा, तो वो हमने निकाला फर्स्ट वाले पर इतना होगा. ठीक है, सिमिलरली बिल्कुल देखेंगे जैसा कि हमारा ये ए पर क्यू है, बी पर भी तो क्यू है और सिचुएशन वही है इसकी भी. तो सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं, सिमिलरली, अब आपको इसको निकालने की तो जरूरत नहीं है. सिमिलरली F2 जो होगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू F एंड दैट इज इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर. ठीक है, ये डिस्टेंस दैट इज अगेन L स्क्वायर. यहाँ पर ये आपकी F2 भी निकाली जा सकती है इस तरह से. तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपका F1 भी और F2 दोनों बराबर फोर्सेस हैं और दोनों किसके बराबर हैं, F के बराबर है. और F हमने क्या माना, वो हमने माना K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर. अब बाकी रह गया थर्ड चार्ज, उसके ऊपर क्या होगा, सिमिलर ले सकते हैं, नहीं. उसमें सिमिलर क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो कंडीशन थी वो सेम इस तरह से थी कि अगर हम इस पर कंसिडर करते जो फोर्सेस थी तो हम इस तरह से ले सकते थे. ये रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में होती, हम इसको लिखते फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 एंड दैट इट इन दिस डायरेक्शन. अगर F3 लेते तो अट्रैक्टिव फोर्स होती, ये इसी डायरेक्शन में होती है F23. पैरेललोग्राम लॉ से हम इसका डायगोनल लेते जो इसका रिजल्टेंट होता एंड दैट रिप्रेजेंट योर फाइनल F2 और वो भी बिल्कुल सेम होता. ओके, तो ये तो कंडीशन सेम आई. लेकिन थर्ड चार्ज पर क्या होगी कंडीशन, थर्ड चार्ज पर देखें तो ये नेगेटिव है और बाकी दोनों पॉजिटिव है, तो बोथ साइड अट्रैक्टिव फोर्सेज लगेंगी. तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगी पहली इस पर, वो अट्रैक्ट करेगी इसको और हो जाएगी F31. इस तरीके से आपकी दूसरे चार्जेस के बीच में ये हो जाएगी F32. तो यहाँ पर दो अलग सिचुएशन बन रही है ना, और इसका पैरेललोग्राम लॉ से हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से रिजल्टेंट एंड दैट इज वुड बी F3. लेकिन अब हमें इसको निकालना होगा और हमें निकालने के लिए जो वैल्यू डिफरेंट क्यों आएगी,
क्योंकि इसके जो बीच का एंगल आ रहा है ये है आपका 60 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल आ रहा था 120 डिग्री, दोनों में ही 120 डिग्री, तो दोनों फोर्सेस बराबर थी, लेकिन ये हमें यहाँ कैलकुलेट करनी पड़ेगी F3। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, यहाँ पर हम कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ हम इसको करेंगे कैलकुलेट। तो यहाँ पर जो हमारा ये मैंने अभी बताया आपको कि ये एक फोर्स है, तो यहाँ लिखते हैं फोर्स, ठीक है, दिस इज फोर्स ऑन Q3 which is equal to minus Q due to Q1, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू Q। तो ये हो जाएगा F31 एंड दैट इज इक्वल टू K Q, सॉरी कैपिटल Q में स्मॉल q है दोनों, तो Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। देखिए मैग्नीट्यूड तो इतना ही आ रहा है इसका, ठीक है। इसी तरीके से फोर्स ऑन Q3 which is minus Q due to Q2 इस टाइम which is Q, तो वो हो जाएगा आपका F32 एंड दैट इज इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। अगेन ये भी सेम ही है, लेकिन डायरेक्शन जो है इसकी अलग अलग है। तो ये हमारी एक फोर्स हो गई, दिस इज F31, और ये एक फोर्स हो गई विच इज F32, और इसको अगर हम लेंगे पैरेललोग्राम लॉ से, तो इसका जो डायगोनल होगा दैट रिप्रेजेंट्स F3, है ना। सो रिजल्टेंट इसका लेंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q3 वो कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू F3 लिखेंगे इसको, और वो रिजल्टेंट होगा दैट इज F31 होल स्क्वायर प्लस F32 स्क्वायर प्लस 2F31 F32 एंड द कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अच्छा, तो यहाँ पर भी जैसे पहला केस था, ये दोनों अगर आप देखें तो जो आपकी F31 आ रहा है और F32 आ रहा है, दोनों बराबर ही हैं, और ये कितना है दैट इज K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, और इसको हम पीछे कंसिडर कर चुके थे, हमने इसको वहाँ क्या कहा था F, तो यहाँ अभी भी ये F ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेक्टर लॉ से इसको ऐड कर रहे हैं और रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, F स्क्वायर, दिस इज अगेन F स्क्वायर, दिस इज 2F स्क्वायर, and cos 60 degree is F square and cos 60 degree is 1/2, ओके। तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, ये वैल्यू आएगी आपके पास 3F स्क्वायर स्क्वायर रूट, ओके। तो हमारा जो F3 आ रहा है, F3 इज नथिंग बट √3F। तो दिस इज समथिंग डिफरेंट, ओके। जो पहली दो कंडीशन थी उनसे डिफरेंट है वैल्यू, ओके। तो ये हमारा सारे फोर्सेस हमने निकाल ली, ठीक है। इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर आप देखें इन सभी फोर्सेस को, तीनों फोर्सेस जो आ रही हैं हमारी, तो एक फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में आ रही थी, हमने जो निकाली इस तरह से होती, अगर उसको हम सिंगल पॉइंट पे अप्लाई करें तो ये हमारी F1 थी इस तरह से, और F2 हमारी कुछ इस डायरेक्शन में आ रही थी, ओके। और F3 जो हमने निकाली, सॉरी ये आपकी F2 थी जो Q2 पे लग रही थी, और अभी जो निकाली हमने ये F3 थी, ओके। यानी एक ही पॉइंट पे इस तरह से ये चार्ज ये यहाँ पर फोर्सेस लग रही हैं। तो अगर आप इन ओवरऑल फोर्सेस का सम करें, यानी अगर आप इसको लिखें F1 प्लस F2 वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखते हैं, तो हम पिछले जो एग्जांपल में हमने किया था, ये तीन फोर्सेस लग रही थी एक ही पॉइंट पर, और उनको अगर हम उनका सम लें तो दैट वुड बी इक्वल टू 0, यानी कहीं ना कहीं ये दोनों फोर्सेस जो हो रही हैं पेयर के अंदर लग रही हैं, सेम फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन लग रही हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, यानी सभी फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, जो कि हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ है। यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, या इसको ये कहें कि दिस इज दी सेकंड न्यूटन्स थर्ड लॉ इज satisfied by in this situation, और it is according to the न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो यहाँ से इसका मतलब ये निकलता है, सो न्यूटन्स थर्ड लॉ जो हम 11th क्लास में पढ़े थे, तो वो भी थोड़ी याद आपकी ताज़ा हो जाएगी। तो दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ,
के अकॉर्डिंग ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर आप इसको कंसिडर करें एज एन आइसोलेटेड सिस्टम, and if it is not moving, there is a no translational motion, it means that all the internal forces are cancelling in totality, और या ये कहें पेयर में जो फोर्सेस लग रही हैं वो इक्वल एंड अपोजिट है, एंड दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। आई होप ये इंटायर एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर, एंड if you have not yet subscribed my channel, so please subscribe it.